everyone. A very warm welcome to today's book reading session. Before starting today's session, let us do a short meditation. So, for that, we need to sit comfortably, enjoy the background music, and listen to the instructions lightly, very lightly. You need to relax now. So let us start. I request you all to close your eyes take a deep breath in. Fill your lungs. And exhale. As you exhale, relax. Relax your body. Relax your mind. Relax your soul. Take a deep breath of fresh air. As we take deep breaths, it helps us oxygenate our body properly. It improves blood circulation, digestion, and reduces stress and anxiety. So I request you all to practice 5 to 10 minutes of deep breathing every day. Gradually, you'll notice positive impacts on your body and your state of mind. Our state of mind is very important because our thinking shapes our circumstances and experiences in real life. So always think positive, constructive. Affirm, I see the bright side of everything. Focus on the positives and be grateful each moment. My path is illuminated by God's guidance, and I help them and I help everyone good in their lives. I am a positive, empowered, elevated soul. My path is easy. But is filled with God's blessings. I am joyful. A healthy soul. My mind and body are perfectly healthy and well.
work capacity is efficient. My relationships are in harmony. I am a reference. I am surrounded by love and gratitude. I am God's child. God's powers, love, and presence are a divine circle of protection around me. Success is certain for me. Faith and patience are a peaceful being. I radiate bliss, love, peace to everyone and everything. I am here, all where I am, because I know that the journey I have on now and here is guiding me to my highest self. My dreams are already fulfilled. I am happy. Shanti. You may now slowly open your eyes. I hope you all like today's meditation. So let us now proceed to our reading. Yesterday, we learned a very beautiful quote, as in heaven, so on earth. And this is the great law of life. This heaven is represented by our mind as in heaven. It means that what kind of thoughts we are having in our mind, the kind of thoughts that we are creating, is reflecting on our earth, on our world, in the form of our body and environment. So thoughts are the seeds. We need to sow these seeds very carefully. After thinking about the quality of the seeds that we are planting, this quality can be positive or negative. So we need to check them first. We need to check our thoughts and then turn them into positive. Repeat them frequently to see the positive results of them in our. Today we are going to start from what is your idea of feeling about yourself now. I wanted to share something with you. Yesterday, the session got stopped suddenly. It was some technical error. So we were able to record till here only. And today we will start from what is your ideal feeling about yourself now. यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और हमसे अपने आप को लेकर के हमारा क्या आइडिया है, हम अपने आप को लेकर क्या सोचते हैं, अपने आप को लेकर क्या फील करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे इसके लिए. Take 10 seconds. Close your eyes and feel. Are we thinking good about ourselves? Are we contented?
Just check. Don't judge yourself. Let me thoughts down. We need to check the quality of thoughts that we are having about our own selves. Every part of your being expresses that idea. Every part of your being expresses that idea. Your vitality, body, financial status, friends, and social status represent a perfect reflection of the idea you have of yourself. This is the real meaning of what is impressed in your subconscious mind and which is expressed in all phases of your mind. चौथे लाइन से कह रहे हैं कि जो हम आइडिया अपने आप को लेकर रखते हैं, जो हम फील करते हैं खुद के बारे में, हमारी बॉडी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सोशल स्टेटस, ये सब कुछ वही रिप्रेजेंट करता है। ये सब एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही चीजें, वैसे ही सर्कमस्टांसेस हम भी अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक रियल मीनिंग है, जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंटरेस्ट जैसा करते हैं वैसा ही एक्सप्रेस होता है हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में। तो आप में से जिन भी लोगों ने थोड़ा सा नेगेटिव सोचा हो या कुछ ऐसा सोचा हो कि आप खुद से संतुष्ट नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, you need to remind yourself that you are enough. You need to take care of yourself. Cultivate the habit of self-love. Do whatever you love, at least for some time, some minutes of a day. तो इस तरह से आप अपने आप से अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से हमें रिलेशनशिप अगर अच्छा बनाना है तो वो हम खुद ही हैं, क्योंकि अपने साथ ही हम हमें पूरी लाइफ रहना होता है ना। तो अपने आप के बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनफ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ और करने की भी जरूरत है, तभी भी बहुत प्यार से खुद को समझाना है। अपने लिए हार्श फीलिंग्स नहीं रखना, अपने लिए रिस्पेक्ट रखना है, खुद से प्यार करना है आपको। और उसके बाद में क्या होगा, आप फील करेंगे कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप वो भी चीजें कर पाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत प्यार से खुद को एक छोटे बच्चे की तरह समझाना है और अपने आप से अपने बारे में अच्छे थॉट्स ही क्रिएट करने हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कि ये डिफिकल्ट रहे, तो पहले हम कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे। आप इन थॉट्स को अपने लिए खुद के अफर्मेशंस को शुरू में लिख ही सकते हैं, फिर उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके थॉट्स पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव आएगा और वो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए पॉजिटिव सोचना। क्योंकि ऑथर कह रहे हैं ना, हम जैसा सोचते हैं खुद के बारे में वही एक्सप्रेस होता है हमारी लाइफ के सारे फेजेस में। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो अपने थॉट्स को अच्छा बनाना होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स ही फूड्स हैं। We injure ourselves by the negative ideas which we entertain. How often have you wondered yourself by getting angry, fearful, jealous, or vengeful? These are the poisons that enter your subconscious mind. You were not born with these negative attitudes. Feed your subconscious mind life-giving thoughts, and you will wipe out all the negative patterns lodged there. As you continue to do this, all the past will be wiped out and remembered when you need. ऑथर कह रहे हैं कि हम कितनी बार खुद को फाइंड करते हैं ना नेगेटिव सोचते हुए, मतलब नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में, जैसे जेलसी, एंगर, हेट्रेड, ऐसे बहुत सारी थॉट पैटर्न्स में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होती है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाइफ गिविंग थॉट्स से भरना होगा। और ऐसा हम करेंगे तो जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स होंगे वो सब मिट जाएंगे। और जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स देते रहेंगे, तो वो क्या होगा, जो अच्छे थॉट्स का सीड हमने प्लांट किया फिर हम उसको वाटर करेंगे और पॉजिटिव थॉट्स, फिर वो एक पेड़ बनेगा ना पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स का। तो ये जो
पेड़ बनेगा ना, वो हमारी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप, वर्क, एनवायरनमेंट, वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हमारी लाइफ के सारे फेजेस बहुत अच्छे होंगे, और जो पास्ट रहेगा वो वाइप आउट हो जाएगा, और उसको फिर हम और ज्यादा याद नहीं रखेंगे। The subconscious heals a malignancy of the skin. A personal healing could ever be the most convincing evidence of the healing power of the subconscious mind. Over 40 years ago, I resolved a malignancy of the skin through training. Medical therapy had failed to check the growth, and it was getting progressively worse. A clergyman with a deep psychological knowledge explained to me the inner meaning of the 139 Psalm, wherein it says, "In thy book all my members were written, which in continuance were fashioned then, as yet there was nothing." He explained that the term book meant my subconscious mind, which fashioned and molded all my organs from an invisible self. He also pointed out that, inasmuch as my subconscious mind made my body, it could also recreate it and heal it according to the perfect pattern of it. ऑथर कह रहे हैं कि उनका मेडिकल केस था जो कि कोई ठीक भी नहीं कर पाया था, प्रोग्रेसिवली वो वर्स हो रहा था और ज्यादा खराब हो रहा था। तो एक क्लर्जीमैन ने उन्हें डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज के साथ में बाइबल की एक लाइन है, इसका मीनिंग समझिए था। इन दाई बुक ऑल माय मेंबर्स है रिटन। तो इसमें बुक का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे उनके सारे मेंबर्स रिटन हैं, विच इन कंटिन्यूअंस है फैशन फिनांस येट देयर वाज नन ऑफ देम। तो वहां पे वो क्लर्जीमैन ने उसका मीनिंग समझाया था कि एक इनविजिबल सेल होती है, उससे ही हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फैशन्ड होते हैं, मोल्डेड होते हैं, बने हुए होते हैं। तो ये पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही है। तो अगर वो बॉडी को बना सकता है तो वो उसको वापस रिक्रिएट भी कर सकता है और उसको हील भी कर सकता है। दिस क्लर्जीमैन showed me his watch and said, "This had a maker, and the watchmaker had to have the idea first in mind before the watch became an objective reality. And if the watch was out of order, the watchmaker could fix it." My friend reminded me that the subconscious intelligence which created my body was like a watchmaker, and it also knew exactly how to restore and direct all the vital functions and processes of my body, and that I had to give her the perfect idea of health. This would act as cause, and the effect would be a healing. तो क्लर्जीमैन ने वॉच दिखा करके भी बोला कि ये जो वॉच है इसका एक मेकर है बनाने वाला। वो जो वॉच मेकर जो है उसके ना माइंड में पहले सिर्फ एक आइडिया ही आता है। जब ये वॉच बनता भी नहीं है, कोई भी सामान अगर हमारे पास में है, कोई फर्नीचर है, तो उसको हम देख करके क्या सोचेंगे, इसे बनाने वाला एक इंसान तो है। अब वो जो बनाने वाला जंती है वो पहले, मान लीजिए अगर कोई फर्नीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो वो लॉक रहा होगा ना। तो जो फर्नीचर जिसने बनाया उसके दिमाग में पहले ये आइडिया आया होगा कि इससे ये टेबल बनानी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सामने नहीं थी, वो टेबल नहीं बनी थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया आया, फिर उसने बनाया। तो शुरू क्या हुआ था, शुरू इस थॉट से ही हुआ था। क्लर्जीमैन ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारी बॉडी बनती है, तो हमारे जो ये सेल्स है, वो सारी चीजें जो है वो सब वापस से रिक्रिएट भी हो सकती है। फंक्शंस और प्रोसेसेस हमारी बॉडी के वो सब डायरेक्ट कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, हील कर सकता है। इसीलिए जरूरी क्या है कि हमें एक परफेक्ट आइडिया देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, परफेक्ट आइडिया ऑफ हेल्थ कि हम हेल्थी हैं।
तो फिर वो एक कॉज होगा, ये जो हमने थॉट प्लांट किया ये एक कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, इसका इफेक्ट होगा हीलिंग के रूप में। फिर वो सच में परफेक्ट हेल्थ के लक्षण हमें दिखाने शुरू करने लगेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। I prayed in a very simple way as follows: my body and all its organs were created by the infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organs, tissues, muscles, and brains. This infinite healing presence within me is now transforming every atom of my being, making me whole and perfect now. I give thanks for the healing I know is taking place now. Wonderful are the works of the creative intelligence within me. वाह, ये कितना सुंदर प्रेयर है। ऑथर ने इसको बहुत सिंपली एक प्रेयर के रूप में रखा कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब क्रिएट कैसे हुए थे, मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसने मेरी बॉडी और मेरे ऑर्गन्स को क्रिएट किया। और ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है मेरे सबकॉन्शियस माइंड की, ये जानती है कि कैसे मुझे हील करना है। ये जो विजडम है, ये ज्ञान है, इसने ही मेरे ऑर्गन्स, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स ये सब बनाया। और ये जो इनफाइनाइट हीलिंग मेरे अंदर प्रेजेंट है, ये अब ट्रांसफॉर्म कर रही है, मेरे ब्रेन के हर एक एटम को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और मुझे वापस होल एंड परफेक्ट बना रही है, मुझे वापस पूरा बना रही है, परफेक्ट बना रही है। और मैं थैंक्स देता हूँ कि इस हीलिंग को, जो कि मेरे अंदर में अभी हो रही है, और मेरे इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस के जो वर्क्स हैं ये बहुत वंडरफुल हैं। तो इस तरह से हम भी प्रे कर सकते हैं अपनी लाइफ के कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम अगर हो, तो उसके लिए आप भी प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कितनी ज्यादा पावर्स होती है, इनफाइनाइट पावर होती है, कितने वंडरफुल मिरेकल्स को परफॉर्म कर सकता है। जो इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, ये कुछ भी कर सकती है, इसको बस कहने की देरी है। I prayed aloud for about 5 minutes, 2 or 3 times a day, repeating the above simple prayer. In about 3 months, my skin was healed and perfect. तो अतः ने ऐसे ही pray किया 5 minutes 2 or 3 times, वो एक दिन में 2-3 times 5 minutes करके ये सिंपल प्रेयर करते हैं, और 3 महीनों के अंदर में उनकी स्किन वापस फुल और परफेक्ट हो गई। As you can see, all I did was give light, giving patterns of wholeness, beauty, and perfection to my subconscious mind, thereby obliterating the negative images and patterns of thought lodged in my subconscious mind, which were the cause of all my trouble. Nothing appears on your body except when the mental equivalent is first illusion. And as you change your mind by drenching it with incessant affirmatives, you change your body. This is the basis of all healing. तो आगे हमसे शेयर कर रहे हैं कि जितने भी मिले हैं उसकी बेसिस क्या है। जब अपनी मेंटल इमेज को सुधारेंगे, ऑथर कह रहे हैं कि हमारे शरीर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जब पहले उसके लिए कारण यही होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में हमने वैसा कुछ क्रिएट किया होता है, उस वजह से ही वो हमें अपनी बॉडी में या फिर अपनी लाइफ में कहीं पे दिखाई देता है। तो उसको ठीक करने के लिए पहले हमें अपने मेंटल इमेज को ठीक करना होगा। Marvelous are thy works, and that my soul, conscious mind knoweth right well. Psalm 139। मार्वलस आर thy works, इसके वर्क्स मार्वलस हैं, और जो मेरी सोल है वो जानती है वो सही चीज है उसकी। और फिर ऑथर इस सोल को भी सबकॉन्शियस माइंड को पहले लिखेंगे। हाउ द सबकॉन्शियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सबकॉन्शियस कैसे कंट्रोल करते हैं बॉडी के सारे फंक्शंस को। When you're awake or sound asleep upon your bed with ceaseless time, of your subconscious mind controls all the mental functions of your body without the help of your conscious mind.
For example, while you are asleep, your heart continues to beat rhythmically. Your lungs do not rest, and the process of inhalation and exhalation, whereby your blood absorbs fresh air, wasn't just the same as when you are awake. Your subconscious controls your digestive processes and glandular secretions, as well as all the administrative operations of your body. The hair on your face continues to grow with advanced development. Scientists tell us insulin secretes much more perspiration during sleep than during the waking hours. Their eyes, ears, and other senses are influencing. For instance, many of our great scientists have received answers to perplexing problems while they were asleep. They saw the answers in a dream. मतलब कह रहे हैं कि हम चाहे सोते हैं चाहे जगे हुए हैं हमारी बॉडी के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है सारे के सारे चलते रहते हैं जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रीदिंग है हमारी इन्हेलेशन एक्सहेलेशन हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो ये सारी चीजें होती रहती हैं हमारे हार्ट बीट करते रहते हैं सारी चीजें होती ही रहती हैं तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है उस वक्त तो कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है ना तो उस वक्त हमारी बॉडी की सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करती हैं और ऑथर ने ये भी कहा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने आंसर्स बहुत परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम्स के आंसर्स नींद में जब वो सो रहे होते हैं उस टाइम अपने ड्रीम में देखते हुए भी होते हैं तो ड्रीम वाले स्टेट में कौन सा एक्टिव रहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है तो इतना पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड का इन टाइम्स ऑफ कॉन्शियस माइंड prepares the phenomenal representative world plans and functions of system signs by worrying anxiety fear and depression these patterns of thought interfere with the harmonious functioning of the subconscious mind when mentally disturbed. The best procedure is to let go, relax, and still the wheels of your thought processes. Speak to your subconscious mind, telling it to take over in peace, harmony, and divine order. You will find all the functions of your body will become normal again. Be sure to speak to your subconscious mind by authority, with authority and conviction, and it will conform to your will. Okay, Harry? जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन वगैरह फिर ब्रीदिंग हो गई हार्ट लंग्स स्टमक के जो फंक्शन होते हैं उसको कई बार ना कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर कर देता है उस टाइम पर कैसे इंटरफेयर करता है वरी एंजाइटी फियर और डिप्रेशन अच्छा यहाँ पे एक और चीज है जो कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे थॉट्स चलते रहते हैं जो नॉर्मल ऊपर ऊपर लेवल वाला चीजें सर्कमस्टांस समझ सकते हैं इससे रिलेटेड थॉट्स क्रिएट होते हैं जैसे very अच्छे नोटिस क्या होगा कि जब ऐसे हम परेशान हो जाते हैं तो उस वक्त हमारी जो ब्रीथिंग है वो शैलो हो जाती है डीप की जगह हम शैलो ब्रीथिंग करने लग जाते हैं हमारी हार्ट बीट वो या तो बहुत फास्ट हो जाती है ऐसा फियर वाले टाइम पर पसीना आना तो ये सब क्या है जो नॉर्मल हमारे बॉडी की फंक्शनिंग हम पर हो जाती है इन चीजों की वजह से ऑथर ने इसका एक सॉल्यूशन दिया है कि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो उस वक्त क्या बेस्ट प्रोसीजर है फॉलो करने के लिए लेट्स गो करना है रिलैक्स करना है और अपने थॉट प्रोसेस के रूल्स को रोकना है मतलब थॉट्स को रोकना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में विथ अथॉरिटी हमें बात करनी है कैसे बात करनी है एक पीस हार्मनी और डिवाइन ऑर्डर तो फिर हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस ब्यूटिफुल होगा और हमारे कमांड को मानने का और फिर बॉडी में सब कुछ हमें नॉर्मल दिखाई देने लगेगा ये symptoms नहीं दिखाई देंगे your subconscious seeks to preserve your life and restore you to health at all costs
It causes you to love your children, which also illustrates an instinctive desire to preserve our life. Let us suppose you accidentally eat some bad food. Your subconscious mind would cause you to regurgitate it. If you inadvertently took some poison, your subconscious powers would proceed to neutralize it. If you completely entrusted yourself to its wonder working powers, you would be entirely restored to health. अवतार हमें ये बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है ना, तो जब अगर खराब भी होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन से बहुत प्यार करते हैं। ये भी एक तरह का इलस्ट्रेशन है, दिखाता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एक चाहत होती है कि वो सारी लाइफ को प्रिजर्व करें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी ने पॉइजन खा लिया तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो उस पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वंडर वर्किंग पावर को कंप्लीटली एडजस्ट करते हैं तो फिर हम अपनी हेल्थ को entirely रिस्टोर करेंगे जरूरत है। Thank you so much for today's reading. Tomorrow we will start from how to get the subconscious to work for you. कैसे हम अपने subconscious को अपने लिए work कैसे करा सकते हैं, तो काफी interesting होने वाला है कल का section. So please join us tomorrow at the same time. Thank you so much, everybody. Lots of love.